Okay, so today our topic is basically we have completed the head region mostly 90 to 95% almost we have completed it. Today we are going to start with the neck region. It is a very important part of this आप लोगों का जो anatomy 3 का course outline है, it has a major part in it. थोड़ा सा difficult as compared to the head region to understand because of you know uh, multiple number of muscles present over here. Today we are going to talk about the muscles of the neck and the arteries of the neck. Okay, so the neck is the region of the body that lies between the lower margin of the mandible above and the suprasternal notch and the upper border of the clavicle below. ठीक है, so basically over here they are telling about the extent of your neck. Basically the neck region जो है वो start कहाँ से होता है, ठीक है? It starts from the base of your mandible. जहाँ से आपका mandible जो है वो end हो रहा है, at that point it is going to start and it will end at the upper border of the clavicle below. ठीक है? क्लैविकल इज बेसिकली आपकी जो शोल्डर बोन है उसको क्लैविकल कहते हैं, दैट इज द क्लैविकल. वहां तक आपका पूरा नेक रीजन आता है. ठीक है, उसके अलावा सुप्रास्टर्नल नॉच जो है इट इज द पॉइंट जहां पर आपकी यू कैन से दैट योर यू कैन से जो आपकी शोल्डर बोन का मिड लाइन एरिया होता है जहां से आपकी शोल्डर बोन स्टार्ट होती है, तो यू कैन सी अ नॉच ओवर हियर. I'm sorry, I didn't add any image. I'll add the image once I upload this on LMS. ठीक है? The suprasternal notch is basically the region जहाँ से आपकी internal jugular vein pass करती है, and it is the point where your clavicle bone starts. It's the midline point basically. It notch like a depression area which you can also feel when you touch between your two clavicle bones. So this is the extent you can see from your base of the mandible to your clavicle bone. This length can vary from individual to individual depending upon their height, their overall physique, but normally this is the region, and usually the neck region is the point जहाँ पर आपके all of the cervical vertebrae are placed. Cervical vertebra 1 till cervical vertebra 7, all of these are placed in your neck region. So it is strengthened by the cervical part of the vertebral column which is convexed forward and supports the skull. ठीक है, so basically जो आपका neck है उसका main function आपके skull और आपकी जो body है upper body उसको join करना है and basically to support your skull, right? यहाँ neck में जितने भी muscles हैं, all of these muscles are basically providing attachments to your head as well as your upper body. Attachments उनकी दो तरफ है, to your head as well to your face as well as to your upper body, and the only function is to strengthen your skull. आपके skull को support provide करना, ठीक है? And mainly the support come from the cervical vertebrae, and secondly it comes from the neck muscles which are multiple in number present on your neck region. ठीक है, so you can see from this diagram that basically these are the cervical vertebrae present in your neck and they are convexed forwards. ठीक है, इस तरह से convexed है forward की तरफ. अगर ये backward होते तो वो ये इस तरह से होते, ठीक है, but they are like this ताकि वो skull का weight जो है hold कर सके और उसको support कर सके. ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रास की डिटेल एनाटॉमी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. 1 to 7 तक की इनके जॉइंट्स क्या होते हैं, इनकी एनाटॉमी क्या होती है. वी आर गोइंग टू स्टडी दैट, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू skip it and move on to the next one. So behind the vertebra is a mass of extensor muscles, and in front of the vertebra is a smaller group of flexors muscles. In the central region of the neck are parts of the respiratory system and the alimentary system. ठीक है, अब you all know that जो movements होती हैं basically दो तरह की होती हैं, या तो extension होती है या flexion होती है. एक्सटेंशन में बेसिकली किसी भी दो जॉइंट्स के बीच में, किसी भी दो बोन्स के बीच में अगर एक्सटेंशन हो रही है या जॉइंट के पॉइंट पर ऑब्वियसली एक्सटेंशन हो रही है, then basically the angle between these two bones is increased, and in flexion the angle between the two bones is decreased.
ठीक है। तो एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन इज बेसिकली टू इंक्रीज और डिक्रीज द एंगल। एक्सटेंशन जब हम अपने फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब की करें तो वी आर इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन योर फोर आर्म एंड योर एल्बो, राइट। और अगर हम अपने अपर लिम्ब की फ्लेक्शन करेंगे तो वी विल डिक्रीज द एंगल बिटवीन योर एल्बो एंड योर फोर आर्म। ठीक है। तो इसी तरह से आपके जो वर्टिब्रास हैं इन योर द सर्वाइकल वर्टिब्रास, behind we have extensor muscles and in front we have flexor muscles, so that is why we are able to carry out multiple movements. You can move your head to your neck, to your right, to your left, below and above. ठीक है। obviously neck की movements जो हैं they are controlled by all of these muscles that includes the neck। ठीक है। तो neck में we can undergo extension as well as flexion। ठीक है। एज यू कैन सी कि जब बेबी बहुत छोटा होता है तो ही और शी इज नॉट एबल टू होल्ड हिज हेड प्रॉपर्ली। ठीक है। कहते हैं दैट वी हैव टू गिव सपोर्ट टू द नेक ऑफ द बेबी विद योर हैंड्स, बिकॉज उस टाइम नेक के मसल्स जो हैं और सर्वाइकल वर्टिब्रा तो होते हैं लेकिन नेक के जो मसल्स होते हैं दे आर नॉट फुली डेवलप्ड। उनकी स्ट्रेंथ जो है डेवलप होने में 2 to 3 months लगते हैं, and after that the baby is able to hold his neck properly without that wiggling movements। ठीक है। उसके अलावा in the central region we have parts of the respiratory system and the alimentary canal। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में obviously you have the pharynx and your larynx। alimentary canal में आपका आ जाता है, आपका esophagus आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ट्रेकिया है। ठीक है। so you can see कि sorry, convexed forward है cervical vertebra, and over here are some extensor muscles, over here are some flexor muscles, and the other parts that are the trachea, the pharynx, the larynx and the esophagus, all of these are present in front of your cervical vertebra। So this is I think I added it, दिस इज द सुप्रास्टर्नल नॉच। ठीक है। जिसको जुगुलर नॉच भी कहते हैं। ठीक है। यू कैन सी दिस इज योर क्लैविकल बोन, दिस इज योर शोल्डर बोन। So your neck region starts from your base of the mandible, inferior border of the mandible till the clavicle bone। ठीक है। And this suprasternal notch that is also called as a jugular notch, where basically your inferior jugular vein passes through। ठीक है। बाकी इसके अलावा और जो आपको यहाँ पर नजर आएगा, यू कैन सी major muscles, which is the trapezius and the sternocleidomastoid muscle। ठीक है। इनकी origins and insertions we are going to study। उसके अलावा this is the thyroid prominence। ठीक है। in some people this is more prominent, in some it is less prominent, it is also called as the Adam's apple। ठीक है। this is basically the voice box। ठीक है। आपका जो larynx है, as I have told you people before as well, larynx is the part of your neck region that controls your speaking। ठीक है। यहाँ पर आपके vocal cords जो हैं वो present होते हैं, that allow you to speak, you to sing, all of these functions related to your speaking are done by this, and it is made up of various cartilages। The major cartilage is the thyroid cartilage। ठीक है। तो thyroid cartilage जो है, it is usually it is very much visible in every individual whenever you are speaking। The thyroid cartilage moves whenever you are speaking, so you can clearly see it in your neck area as well। ठीक है। so neck, it has skin, superficial fascia and deep cervical fascia। ठीक है। स्किन का ऑब्वियसली स्किन इज द आउटर कवरिंग। ठीक है। जो आपकी पूरी बॉडी को उसने स्किन से ऑब्वियसली इट इज कवर्ड एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। उसके अलावा दे आर सेइंग फेशिया, दे आर टॉकिंग अबाउट superficial fascia and the deep fascia। so basically what is fascia? ठीक है। फेशिया को अगर इफ आई टेल यू इन मोस्ट easiest terms, तो आई कैन से कि बेसिकली फेशिया इज द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मीन्स कि ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू का एक शीट्स होती हैं। ठीक है। these connective tissue sheets basically are present to provide support to your viscera, to your vessels, to your nerves। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ऊपर हम whenever there is a surgeon who is performing a surgery, ठीक है, तो सबसे पहले he will give an incision to your skin, right?
स्किन के बाद आपका सुपरफिशियल फेशिया आ जाता है, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया इज अनदर शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज प्रेजेंट बेसिकली एज अ प्रोटेक्टिव, ठीक है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए होता है। उसके बाद आपका आ जाता है डीप फेशिया, ठीक है। डीप फेशिया इंक्लोजेस इंडिविजुअल मसल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेक में आपका ट्रेपेजियस मसल भी प्रेजेंट है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल भी प्रेजेंट है। उसके अलावा वी हैव वेरियस जो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड स्ट्रैप मसल्स, सुप्राहाइड एंड इंफ्राहाइड मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम नेक में इंसिजन करेंगे तो वी विल कट द स्किन। उसके बाद हमारे पास पूरा जो ट्रेपीजियस इज द लार्जेस्ट मसल ऑफ योर नेक रीजन, ठीक है। पूरे ट्रेपीजियस के सराउंडिंग में कनेक्टिव टिश्यू लेयर होगी जिसको हम सुपरफिशियल फेशिया कहेंगे, ठीक है। नॉट ट्रेपीजियस, सॉरी, प्लैटिज्मा मसल, ठीक है। प्लैटिज्मा जो आपके बैक ऑफ द नेक तक होता है, ठीक है। प्लैटिज्मा मसल को पूरा उसने इंक्लोज किया हुआ। देन हम उसको जब इंसाइज करेंगे तो वी विल एनकाउंटर द डीप फेशिया। डीप फेशिया ने इंडिविजुअल मसल को रैप किया हुआ है और उसको बेसिकली हर मसल को सेपरेट किया हुआ है। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का एक अपना अलग से डीप फेशिया है, ठीक है, विच इज सराउंडिंग द होल मसल। ट्रेपीजियस का अलग होगा, स्कैलिनस एंटीरियर का अलग होगा, ठीक है। सो जो डीप फेशिया होता है इट इज प्रेजेंट मोर डीपली एंड इट इज इंक्लोजिंग इंडिविजुअल मसल्स, ठीक है। इंडिविजुअल मसल्स को जब वो इंक्लोज करता है तो बेसिकली ये सेपरेट कर रहा है वेरियस मसल्स को, वेरियस नर्व्स को, वेसल्स को, और उसके साथ साथ उसको सपोर्ट और प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। सो सुपरफिशियल सर्वाइकल फेशिया लाइज बिटवीन द डर्मिस एंड द डीप सर्वाइकल फेशिया एंड कंटेन्स न्यूमरस स्ट्रक्चर्स, obviously neurovascular supply to the skin, superficial veins, superficial lymph nodes, fat and platysma muscle, ठीक है। तो ऑब्वियसली नरिशिंग टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें वेसल्स एंड नर्व्स जो हैं ऑब्वियसली दे विल बी प्रेजेंट। Then comes the deep cervical fascia. Deep cervical fascia supports the muscles, the vessels and viscera of the neck, and in certain areas it is condensed to form fibrous sheets called the investing layer, the pretracheal layer, the prevertebral layer and the carotid sheath, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर कि आपका जो होता है फेशिया सुपरफिशियल एंड डीप, कि आपकी बॉडी में मोस्टली एरियाज हर जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। जहाँ जहाँ मसल्स होंगे वहाँ पे फेशिया प्रेजेंट होगा। नेक रीजन में जो है कुछ जगहों पर at some points of your neck the deep fascia condenses to form fibrous sheets, ठीक है। fibrous sheets में हमारे पास investing layer आ जाती है, pretracheal layer, prevertebral layer and the carotid sheath। तो ये बेसिकली आपके नेक रीजन में डिफरेंट फेशिया के कंपार्टमेंट्स यू कैन से के बने हुए जो कि फर्दर यू कैन से कि they are further providing protection and support to the tissues which they are enclosing, ठीक है। अब इन layers के नाम आप मैंने ऐड किए थे। If you want to gain your knowledge you can go through any book and you will find the details about these different layers, but as per your exam point of view या जो आपका course outline है उसमें you don't require the detail of all of these layers, ठीक है। तो मैंने सिर्फ जो है आई हैव ओनली एडेड द नेम्स ताकि एटलीस्ट आप लोगों को नाम पता हो, और ये सिर्फ नेक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। यू मस्ट कीप दैट इन माइंड कि डीप फेशिया हर जगह प्रेजेंट होता है लेकिन नेक रीजन में ही कुछ जगहों पे ये कंडेंस करके इस तरह से फाइब्रस शीट्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। नाउ कमिंग टू द मसल्स ऑफ द नेक, ठीक है। अच्छा, मसल्स जो हैं हम ऑलरेडी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ ये यहाँ पे आज रिपीटिशन होगी, जहाँ जहाँ रिपीटिशन वो मसल्स होंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। आई एम नॉट गोइंग टू डिलीवर देम टुडे, ठीक है। हम बाकी सारे जो है वो पढ़ेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द सुप्राहाइड मसल्स एज वेल एज द इंफ्राहाइड मसल्स, ठीक है। ये हम डिटेल में ऑलरेडी हॉइड बोन के साथ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ऑन दैट लेक्चर अगर आपने स्लाइड्स व्यू की हुई हो तो यू कैन सी कि उसमें जो है प्रॉपर टेबुलेटेड फॉर्म में इंफ्रा और सुप्राहाइड मसल्स की ओरिजिन, इंसर्शन एंड वो फंक्शन एंड नर्व सप्लाई नहीं थी। सो आई हैव एडेड दैट इन दिस लेक्चर, ठीक है। बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट इन द प्रीवियस लेक्चर। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो ऑब्वियसली वी कैन discuss it in the last time in the interactive session.
So muscles of the neck में major muscles में first of all we have the platysma, then the sternocleidomastoid, and then the digastric posterior belly and the anterior belly. Other than that, all of these muscles which are the suprahyoid as well as the infrahyoid, stylohyoid, mylohyoid, geniohyoid, sternohyoid, sternothyroid, thyroid, and the omohyoid. All of these we have studied in detail. I hope that I don't need to repeat all of this again. Other than that, scalenus anterior, medius, and scalenus posterior. ठीक है, so this is dissected view of your neck. ठीक है, इसमें कुछ मसल्स जो हैं वो व्यू होंगे, कुछ ऑब्वियसली नहीं होंगे व्यू. ठीक है, ये मैंडिबल है. सबसे पहले तो यू कैन सी मैंडिबल के बिल्कुल ही बिलो जो है माइलोहॉइड ब्रिज से माइलोहॉइड मसल जो है वो आपका स्टार्ट होता है. दिस इज योर माइलोहॉइड मसल. ठीक है, वंस वी कट द माइलोहॉइड मसल देन वी विल बी एबल टू व्यू द जीनोहाइड एंड द हायोग्लॉसिस मसल विच इज योर टंग मसल. ठीक है, तो ये मेजर एक ओवरऑल एक डायग्राम है. उसके अलावा जो मेन मसल जो हमने न्यू पढ़ने हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल. ठीक है, ये आप मसल देख सकते हैं जो कि आपके ईयर के रीजन से ठीक है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर ईयर रीजन एंड इट इज एंडिंग एट योर क्लेविकल. ठीक है, ईयर से लेकर ये आपके क्लेविकुलर रीजन तक जो है ये एक्सटेंड कर रहा है आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल. ठीक है, उसके अलावा आप जो है बाकी यहाँ पर इतने मसल्स व्यू नहीं हो रहे. ऑलरेडी ये वाले हो रहे हैं जो कि डाइगैस्ट्रिक है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल ऑफ दीज मसल्स एंड देन उनके ओरिजिन एंड इंसर्शन. सबसे पहले प्लैटिज्मा मसल है. ठीक है, इट इज origin is from the deep fascia over pectoralis major and the deltoid, and insertion is on the body of the mandible and the angle of the mouth. ठीक है, तो यू कैन से कि जो प्लैटिस्मा मसल है वो आपका इंफीरियर टू सुपीरियर जा रहा होता है. ठीक है, इसकी ओरिजिन जो है वो इंफीरियरली होती है और इंसर्शन जो है वो आपकी सुपीरियरली होगी टू द बॉडी ऑफ द मैंडिबल एंड टू द एंगल ऑफ द माउथ. ठीक है, अब ये नर्व सप्लाई इज द I'm sorry. ठीक है, nerve supply is from the facial nerve, cervical branch. Action, it depresses the mandible and the angle of the mouth. ठीक है, अब ना ओरिजिन में इन्होंने दे हैव यूज्ड टर्म पेक्टोरालिस मेजर एंड डेल्टोइड. ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर बेसिकली एक मसल ही है. ठीक है, बेसिकली ये जो है ना आपका यू कैन से कि इट इज़ योर मसल दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम योर आपका जो शोल्डर है उसके बिलो आपका थोड़ा नेक एरिया और आपके एल्बो के बीच में से जो है ना ये आपका पेक्टोरालिस मेजर मसल जो है वो स्टार्ट होता है. इट इज कंसिडर्ड टू बी योर शोल्डर मसल. ठीक है, आपके शोल्डर के वन ऑफ द शोल्डर मसल इज योर पेक्टोरालिस मेजर. ठीक है, और उसके बिल्कुल अबाव जहाँ पे आपका आर्म स्टार्ट हो रहा है दैट इज योर डेल्टोइड रीजन. So you can say कि जो प्लैटिस्मा मसल है वो आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम योर पेक्टोरालिस मेजर दैट इज योर शोल्डर एंड योर आर्म रीजन एंड टुवर्ड्स योर बेस ऑफ द मैंडिबल एंड द एंगल ऑफ द माउथ. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. आपका जो पेक्टोरालिस मेजर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, यूं करके यहाँ इतने एरिया में यू हैव योर पेक्टोरालिस मेजर मसल प्रेजेंट एंड दिस इज योर डेल्टोइड रीजन. यहाँ पे ये जो आपका आर्म का रीजन है दैट इज योर डेल्टोइड रीजन. यहाँ से आपका trapezius muscle, platysma muscle is going to originate and get inserted into your base of the mandible and the angle of the mouth. ठीक है, it can be clinically seen when the patient is asked to clench his or her jaws firmly. ठीक है, तो if we have to ask the patient, उसका हमने इंस्पेक्शन करनी है मसल की या पैल्पेशन करनी है तो we will ask the patient to clench his or her jaws firmly, and when he or she will do that we will be able to see the platysma muscle will be fully contracted. ठीक है, देन वी हैव द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल. ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को ये एक बात बिफोर स्टार्टिंग बता दूं दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज मसल्स की ओरिजिन एंड इंसर्शन वेरी मच. आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए.
कि कौन सा मसल कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सा कहाँ पड़ा हुआ है, बिकॉज इन्हीं मसल्स के थ्रू हमने नेक को वेरियस रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड किया हुआ है, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो जब तक आपको मसल्स की प्रॉपर लोकेशन अटैचमेंट्स नहीं पता होंगी, यू विल नॉट हैव अ हैंग ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ द नेक। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हुई तो यू राइट इट डाउन ताकि वी डिस्कस इट इन द इंटरैक्टिव सेशन। Sternocleidomastoid origin is from the manubrium sterni and the medial third of the clavicle and inserts into the mastoid process of the temporal bone and the occipital bone. ठीक है, mastoid process is the process that is behind your ear. ठीक है, तो ये medial third जो आपकी clavicle bone है उसकी medial third से ये originate करके it gets inserted into the mastoid process of your temporal bone. Nerve supply is the spinal part of the accessory nerve and C2 and C3, and action is two muscles acting together extend the head and flex the neck. One muscle rotates the head to the opposite side. ठीक है, तो यू मस्ट रिमेंबर कि ये भी टू मसल्स हैं आपके नेक में, जितने भी मसल्स हैं दे आर टू इन नंबर। तो आपका जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है राइट का अलग है एंड लेफ्ट का जो है वो सेपरेट है। ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पे ये मेस्ट्रॉइड प्रोसेस होता है विच यू कैन palpate by yourself as well, and from your medial third of the clavicle it originates. ठीक है, इसके टू हेड्स होते हैं, वैसे इतना इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, एक्सटर्नल हेड होता है, एक क्लाविकुलर हेड होता है, बट दैट्स ओके, यू डोंट नीड टू मेमोराइज दैट मच डिटेल, यू नीड टू नो द ओरिजिन एंड द इंसर्शन एज वेल एज द फंक्शन. It is a strong, thick muscle that prevents the underlying soft tissues from trauma. And in suicide attempts, the sternocleidomastoid has to be greatly severed in order to achieve the desired results. ठीक है, तो basically क्या होता है that whenever the person is trying to commit suicide with a knife or he is trying to cut his neck himself, तो बेसिकली उसका मेन उसका आइडियोलॉजी तो बंदे की यही होती है ना, that he or she has to cut his common carotid artery, ताकि जो है कॉमन कैरोटिड जो है वही आगे फर्दर एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड में जाकर इट इज फर्दर सप्लाइंग दी ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो जब भी यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि ड्यूरिंग सुसाइड अटेम्प्ट्स पेशेंट फर्स्ट एक्सटेंड्स हिज नेक. ठीक है, नेक अपनी को थोड़ी सी एक्सटेंड करके जो है वो नाइफ जो है यूज करना चाहेगा. सो व्हेनेवर द पर्सन एक्सटेंड्स हिज नेक, द स्टर्नोक्लीड जो आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल जो है उस यू कैन से कि उसके फॉरवर्ड आ जाता है. ठीक है, तो आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के पीछे चली जाती हैं. सो इट इज देयर इज अ वेरी हाई चांस कि पेशेंट जो है वो सिर्फ आपका मसल को सवेयर करे और आपकी आर्टरी तक उसकी नाइफ जो है वो ना जा सके. Until and unless a greater amount of the sternocleidomastoid muscle is severed, that it makes a passageway to enter the common carotid artery, up to the suicide attempt will be successful. But in most of the cases, it is not, because the sternocleidomastoid muscle is basically protecting your carotid arteries from getting, trauma से करने के लिए कि कोई भी कट जो है वो फौरन से आर्टरी को या किसी नर्व को ना हो. ठीक है, डायगैस्ट्रिक मसल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ठीक है, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं हॉइड बोन के साथ, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट ऑल ऑफ दिस अगेन. मैंने जस्ट यहाँ पे ऐड कर दिए थे इंक्यूरेशन एंड इंसर्शन, बिकॉज उस प्रीवियस लेक्चर में आई हैड नॉट एडेड दैट. मैंने इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को पढ़ाया था. ठीक है, तो अब आप इस डायग्राम को साथ साथ जो है यू कैन मेमोराइज द ओरिजिन एंड इंसर्शन फ्रॉम दिस टेबल्स. कोई कंफ्यूजन हो तो वी कैन ऑब्वियसली डिस्कस दैट इन the next lecture. कभी भी कोई भी question हो अभी, but right now I'm going to skip it because we've already done it. ठीक है, डाइगैस्ट्रिक का मैंने पहले भी बताया था, it has two bellies, anterior and a posterior belly. Then the styloid process, styloid muscle. ठीक है, mylohyoid we have already just done. ठीक है, all of these are the strap muscles or the infrahyoid and the suprahyoid muscles. ठीक है, we have already discussed it, so I'm going to skip all of this. This is also a very great diagram, to understand the basic location of each of the muscles. I would suggest all of you कि जब भी आप मसल की ओरिजिनल इंसर्शन पढ़ें साथ डायग्राम लाजमी रखें, ताकि आप लोगों को बार बार जो है याद करने की इस तरह जरूरत नहीं पड़ेगी.
वंस आप डायग्राम को एक दो तीन दफ़ा देख लेंगे और साथ साथ टेबल्स के साथ ओरिजिन इंसर्शन देख लेंगे, कुछ आपको ओरिजिन इंसर्शन मसल की नेम से याद हो जाएगा, कुछ बाकी आपको डायग्राम के थ्रू याद हो जाएगा। तो अगर आप रट्टा लगाएंगे तो रट्टा आपको कभी भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो स्लाइड्स में ही मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, आप इन्हीं के थ्रू जो है मेमोराइज करें तो इट विल बी वेरी मच ईजियर फॉर यू। ठीक है, सो नेक्स्ट जो मसल है दैट इज द स्कैलिनस एंटीरियर मसल। ठीक है, you can see the origin is from the transverse process of the third, fourth, and the sixth cervical vertebra, and insertion is on the first rib. The nerve supply is C4, C5, and C6, and action is to elevate the first rib, laterally flexes and rotates the cervical part of the vertebral column. ठीक है, तो basically scalene muscles भी इनको कहते हैं. They are three number. Okay, there are three paired muscles and lateral part of the neck में ये present होते हैं. Scalenus anterior, scalenus middle, and scalenus posterior. ठीक है, इन तीनों को की ओरिजिनल इंसर्शन ऑब्वियसली यू नीड टू नो कि कौन सा जो है कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है और कहाँ पे इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन सी this is the scalenus anterior, then the scalenus middle, and the most posteriorly will be the scalenus posterior muscle. ठीक है, you can see कि ये सिर्फ lateral region of the neck में पड़े हुए होते हैं। ठीक है, secondly इनकी importance ये है that they are basically considered the accessory muscles of respiration, and neck की flexion तो करवाती हैं, उसके साथ respiration में भी they play an important role. Why? Because ये आपकी ribs के साथ जाके attach हो रही हैं। ठीक है, तो rib जो है वो बेसिकली आपके लंग्स को, आपके हार्ट को उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ नेसेसरी मसल ऑफ योर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले एंटीरियर स्कैलिनस मसल की बात करें तो ये जो है बिल्कुल डीपली प्लेस्ड होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की। ठीक है, इसके सुपरफिशियली हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, और जब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को हम कट करेंगे तो वी विल बी एबल टू सी दी स्कैलिनस एंटीरियर मसल। ठीक है, scalenus process, transverse process of the upper six cervical vertebra to the first rib. ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट है ऑफ द थ्री स्कैलिनस मसल। ठीक है, एंड इसकी अटैचमेंट्स एंड अटैचमेंट जो है अगेन फर्स्ट रिब पर ही हो रही है, लेकिन ये अपर सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा तीनों से जो है इसकी ओरिजिनेशन होती है। Then is the posterior scalenus muscle. ठीक है, transverse process of the lower cervical vertebra and inserts into your second rib. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा deeply placed होता है and it is the most smallest. ठीक है, and unlike the middle and the interior, it inserts into the second rib. ठीक है, ये अगेन posterior की उन्होंने दोबारा से बताई हुई है। Okay, so this is how the three scalenus muscles are present: scalenus anterior, the middle, and the posterior. Posterior जो है वो posteriorly placed होता है और second rib पे आके attach होगा, and middle one is the longest and the strongest, but the posterior one is the most smallest and the most deeply placed of the three muscles. ठीक है, now torticollis. ठीक है, इट इज़ बेसिकली अनॉमली। ठीक है, टॉर्टिकॉलिस इज बेसिकली एन अनॉमली जिसमें आपके जो सर्वाइकल मसल्स होते हैं उनकी कंट्रैक्शन या शॉर्टनिंग हो जाती है, या उनकी फुली प्रॉपरली डेवलपमेंट ही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से नेक की जो है प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगी। नेक जो है वो हमेशा से टिल्टेड रहेगी और स्लांटिंग पोजिशन में रहेगी। ठीक है, यूजुअली जो मसल इसमें डैमेज होता है दैट इज योर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ठीक है, यूजुअली अगर कंजेनिटली ये प्रेजेंट है, congenitally means that if at birth it is present, तो बेबी जो है वो आफ्टर 6 to 8 weeks you will be able to see that he or she is unable to hold his neck. ठीक है, जो नेक की एक सपोर्ट होती है वो बेबी की डेवलप नहीं होगी और इस तरह से हेड जो है वो टिल्टेड और स्लांटेड पोजीशन में रहेगा टुवर्ड्स द अफेक्टेड मसल। ठीक है, इन दिस केस द राइट स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड इज अफेक्टेड, दैट इज व्हाई द हेड इज टिल्टिंग टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, सो इट मे बी कंजेंटल और इट मे बी स्पैस्मोडिक। स्पैस्मोडिक को हम एक्वायर्ड टॉर्टिकोलिस की कहते हैं। ठीक है,
कंजेंटल मीन्स दैट एट बर्थ जो है ये यूजुअली प्रेजेंट होता है. इट यूजुअली अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द sternocleidomastoid मसल ड्यूरिंग डिफिकल्ट लेबर एंड स्पाज्मोडिक इज यूजुअली साइकोजेनिक इन ओरिजिन. ठीक है, कंजेंटल में यही होता है कि अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग और डिफिकल्ट लेबर हो तब जो है बेबी का ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ड्यूरिंग द मूवमेंट फ्रॉम द बर्थ कैनाल sternocleidomastoid मसल जो है वो एक्सेसिव स्ट्रेच हो जाता है जिसकी वजह से उसके फाइबर्स जो हैं दे आर डैमेज्ड. सेकेंडली, अगर कोई डिफिकल्ट लेबर की वजह से फोर्सेप डिलीवरी हो या वैक्यूम पम्प डिलीवरी हो तो फिर उसमें भी दे आर अ ग्रेट चांस के कंजेंटल टॉर्टिकोलिस जो है वो बेबी को हो. एंड यूजुअली 6 to 8 weeks 10 weeks लग जाते हैं इस चीज़ को डायग्नोज करने में बिकॉज ऑब्वियसली इनिशियली द बेबी इज जस्ट लाइंग डाउन एंड इज नॉट एबल टू अपने नेक को सपोर्ट नहीं कर सकता. बट आफ्टर सम टाइम एंड यू विल बी एबल टू सी दैट नाउ इज द टाइम दैट ही और शी मस्ट बी एबल टू सपोर्ट हिज नेक. he or she will not be able to do so and neck की और head just slanted position में. ठीक है, उसके अलावा स्पेस्मोटिक या एक्वायर्ड जो है इट इज वेरियस मल्टीपल कॉजेज यूजुअली साइकोजेनिक होता है. साइकोजेनिक मींस के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जनरेशंस में होते हैं उनमें नेक जो हो उनमें जो मसल्स होते हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है ड्यू टू बीइंग इन स्ट्रेस कॉन्स्टेंटली. उसके अलावा कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, एनी ऑफ द कोई भी वजह हो सकती है. ठीक है, जिसकी जो आपके मसल की टेयरिंग करवा दे, आपके मसल की शॉर्टनिंग करवा दे एंड इट कैन हैपन एट एनी एज. ठीक है, सो दिस इज जनरल अपीयरेंस ऑफ बेबी हु सफर फ्रॉम कंजेनिटल टॉर्टिकोलिस. ठीक है, नाउ कमिंग टू द आर्टरीज ऑफ द नेक. ठीक है, अभी तक हमने मसल्स पढ़ लिए हैं और मेजर जो नेक के थे ट्रापेजियस, sternocleidomastoid, कैनिनस मसल एंड द प्लैटिस्मा मसल. द रेस्ट वी हैड ऑलरेडी डन बिफोर. Now coming to the arteries of the neck. ठीक है, we are only talking about the arteries, not veins today because we have very less time I think. ठीक है, आर्टरीज में जो मेनली हमारे पास आर्टरीज आती हैं उसमें वी हैव द कॉमन कैरोटिड आर्टरीज. ठीक है, एज यू ऑल नो हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड से जो है ब्लड पंप होती है थ्रू दी आयोटा. इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द होल पार्ट ऑफ योर बॉडी. ठीक है, तो आयोटा से हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ओरिजिनेट करती है और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी. ठीक है, so the right and the left common carotid artery, both of them are then going to divide into external and the internal carotid artery, which are फर्दर उनकी आगे पूरा पाथवे जो कि हम अभी देख लेते हैं आगे. ठीक है, एट द अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज ये डिवाइड करेगी. ठीक है, जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी या जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है ये बेसिकली आपकी चेस्ट रीजन, आपका जो मीडियास्टिनम है उसकी आर्टरी है. ठीक है, ये आपके हेड एंड नेक रीजन को भी सप्लाई करती है, उसके साथ साथ आपकी राइट आर्म को भी सप्लाई करती है. ठीक है, यू कैन से कि जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है ये डायरेक्टली आर्च ऑफ आयोटा से ओरिजिनेट करती है, लेकिन राइट जो है वो ब्रेकियोसेफेलिक से करती है. ब्रेकियोसेफेलिक अब कहाँ से आ रही है? ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक जो है इट आल्सो अराइजेस फ्रॉम द आयोटिक आर्च बट मोर थोड़ा सा इंटीरियरली ये ओरिजिनेट करती है, थोड़ा इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली फ्रॉम द आर्च ऑफ द आयोटा. ठीक है, एंड देन राइट कॉमन कैरोटिड में डिवाइड करके फर्दर जो है ये आगे अपना देगी. ठीक है, now coming to the carotid sinus. ठीक है, at the point of division of the common carotid artery, the terminal part of the common carotid artery or at the beginning of the internal carotid artery, it shows a localized dilatation called the carotid sinus. ठीक है, अगर आप देखें ये आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है जो कि डिवाइड हुई है इनटू इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, तो आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है यहाँ उसमें एक लोकलाइज्ड डायलिटेशन होती है जिसको हम कैरोटिड साइनस कहते हैं. ठीक है, साइनस का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे साइनस प्रेजेंट है, जस्ट ये है इस आर्टरी के एट दैट पॉइंट वहाँ पर उसकी जो वॉल्स हैं उनमें थोड़ी सी एक डायलिटेशन है, लोकलाइज्ड होती है. ठीक है, जिसको हम कैरोटिड साइनस कहते हैं. व्हिच सर्व्स एज अ रिफ्लेक्स प्रेशर रिसेप्टर मैकेनिज्म अराइज इन द ब्लड प्रेशर कॉजेस स्लोइंग ऑफ द हार्ट रेट एंड वासोडाइलेशन ऑफ द आर्टरीज. ठीक है, तो आपकी जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो डायरेक्टली आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रही होती है. ठीक है, कैरोटिड साइनस में हमारे पास प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं. अगर ब्लड प्रेशर विल बी हाई तो कैरोटिड साइनस विल डिटेक्ट दैट चेंज एंड देन ही जो आपका कैरोटिड साइनस होगा इट विल अल्टीमेटली कॉज द वासोडाइलेशन. ठीक है,
खुद भी उसकी वेजोडाइलेशन होगी। ऑब्वियसली जब कैरोटिड की होगी तो आगे फर्दर जो आर्टीरियोल्स है उनकी वेजोडाइलेशन होगी, ताकि आपका हार्ट रेट भी स्लो रहे एंड आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल की तरफ मेंटेन रहे। ठीक है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि हर पेशेंट में होता है। ठीक है, बट इफ स्टिल फॉर एग्जांपल कुछ लोग हाइपरटेंसिव होते हैं, उनमें दैट मींस कि ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा अबव नॉर्मल हो गया दैट द बॉडी इज अनएबल टू मेंटेन इट टू द नॉर्मल, सो दे हैव टू टेक certain medications to control the hypertensive state. बट एक नॉर्मल जो बॉडी में ब्लड प्रेशर का मैकेनिज्म मेंटेन करने का है, दैट इज द कैरोटिड साइनस. Then next we have the carotid body, which is a small structure that lies posterior to the point of bifurcation of the common carotid artery, and it is innervated by the glossopharyngeal nerve. ठीक है, ये साइड बाय साइड ही लाई कर रही होती हैं बॉडी एंड साइनस. फर्क सिर्फ इतना है दैट द कैरोटिड बॉडी इज अ कीमोरिसेप्टर. कीमोरिसेप्टर मींस कि ये बॉडी में केमिकल चेंज को डिटेक्ट करेगा. ठीक है, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड या रिड्यूस्ड ऑक्सीजन होगी तो इट विल देन प्रोड्यूस राइज द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ताकि रेस्पिरेटरी मूवमेंट आपकी ज़्यादा. फॉर एग्जांपल आप हाई माउंटेनियस एरिया में जा रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर मे बी क्लाइंबिंग अ माउंटेन. ठीक है, तो यू व्हेन यू आर क्लाइंबिंग तो आपका ऑक्सीजन ब्लड में कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए. सो फॉर दैट your carotid body will detect that change and it will cause a rise in the blood pressure and the heart rate. सबसे पहले आपकी respiration increase करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल करें. एज अ रिजल्ट हार्ट रेट भी ज़्यादा होगा और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी राइज करेगा. राइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपका 200 तक ब्लड प्रेशर चला जाएगा. राइज करने का मतलब है कि जब ऑक्सीजन टेंशन कम होती है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल से लो हो जाता है. ठीक है, 120/80 है अगर, तो वो 90/100 हो सकता है कुछ, सॉरी 90/80 या 90/70 हो सकता है. तो उस लो को हाई की तरफ ले जाने के लिए द कैरोटिड बॉडी serves its purpose. So only difference is in their location. Carotid body थोड़ा सा posteriorly placed होती है, and secondly it is a chemoreceptor, but the carotid sinus is a pressure receptor. It will detect the pressure change directly. लेकिन carotid body जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से जो है आपका ब्लड में उसके अकॉर्डिंगली ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करेगी. फंक्शन दोनों का एक ही है, दोनों ने ब्लड प्रेशर ही मेंटेन करना है. ठीक है, external carotid artery is one of the terminal branches of the common carotid artery and it supplies the structures in the neck, the face and the scalp and also supplies the tongue and the maxilla. ठीक है, ये आप देख सकते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है ये आपके बाकी सारे हेड रीजन में, आपके स्कैल्प रीजन में जो है वो सप्लाई कर रही है. जो इंटरनल कैरोटिड है वो आपके स्कल के अंदर आपकी ब्रेन में सप्लाई करेगी. ठीक है, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का थोड़ा सा पाथवे देखें. सो इट बिगिंस एट द लेवल ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज. ये बात किसी ने नहीं भूली कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी किस पॉइंट पे बाइफरकेट करती है. अगर मैं वाइवा में कभी पूछूं that where the common carotid artery is bifurcating और अगर किसी ने मुझे इसका आंसर गलत किया then he or she consider himself to be failed. It is a very 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 important viva question as well. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी आपकी कहाँ से बाइफरकेट करेगी. सो इट बाइफरकेट्स एट द लेवल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, जो कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया था. एडम्स एप्पल होता है जहाँ पे आपका थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट है. ठीक है, इट टर्मिनेट्स इन द सबस्टेंस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल बाय डिवाइडिंग इनटू द superficial temporal and the maxillary arteries. ठीक है, these are all the branches. ये भी obviously आपको पता हो कौन कौन सी ब्रांच जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड की है. ठीक है, सुपीरियर थायराइड जो है वो थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करिए. सेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी आपके फेरिंग्स को सप्लाई करिए. लिंगुअल आर्टरी टू योर टंग एरिया. फेशियल आर्टरी आपके जो बेस है सारा, योर मसल्स एंड योर ओवरऑल आपकी जो स्किन है उसको सप्लाई करेगी. ऑक्सीपिटल आर्टरी टू द बैक ऑफ योर नेक. posterior auricular to the back of your ear. superficial temporal जो है वो आपके स्कैल्प के रीजन को, टेम्पल के रीजन को करेगी. मैक्सिलरी आर्टरी जो है वो आपके सारे मैक्सिलरी एरिया को करेगी. ठीक है, तो ब्रांचेस ऑब्वियसली यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, तो इस तरह से ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी. सुपीरियर थायराइड, यहाँ पर आपका थायराइड ग्लैंड है. देन टंग है. फेशियल आर्टरी जो है वो यहाँ पर अगर आप अक्सर इफ यू नो टच योर फिंगर, आप यहाँ पे देखें तो फेशियल आर्टरी की पल्सेशन यू कैन वेरी क्लियरली यू नो आप फील होंगे.
देन द मैक्सिलरी सुपरफिशियल टेम्पोरल जो है वो आपके पूरे स्कैल्प रीजन को सप्लाई करती है. देन द पोस्टीरियर ऑरिकुलर ऑक्सीपिटल एंड द असेंडिंग फेरेंजियल टू योर pharynx. ठीक है. Then is the internal carotid artery. It begins at the bifurcation of the common carotid artery at the level of the upper border of the thyroid cartilage and supplies the brain, the eye, the forehead, and the part of the nose. ठीक है. Artery ascends in the neck embedded in the carotid sheath with the internal jugular vein and the vagus nerve. At first, it lies superficially and then passes deep to the parotid salivary gland. ठीक है. तो अगर याद हो तो पेरोटिड ग्लैंड से आपकी फेशियल नर्व भी पास करती थी. ठीक है. तो पेरोटिड ग्लैंड आपका बहुत एक मेजर मसल है. ठीक है. मेजर इन द सेंस के यहाँ से आपकी बहुत सारी आर्टरीज ऑफ द नेक एंड योर नर्व्स जो है वो पास कर रही होती है. ठीक है. Internal carotid artery leaves the neck area by passing into the cranial cavity through the carotid canal in the petrous part. It then passes upward and forward in the cavernous venous sinus without communicating it with it, and it goes lateral to the optic chiasma and terminates by dividing into the anterior and the middle cerebral arteries. ठीक है. तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सबसे पहले कॉमन कैरोटिड के लेवल से स्टार्ट होगी. ठीक है. वहाँ से जो है ये आपकी जाएगी सुपीरियरली मूव कर रही है. सुपीरियरली मूव करके नेक रीजन से ये आपके स्कल में चली जाएगी थ्रू द कैरोटिड कैनाल. स्कल में जब जाएगी तो फिर वहाँ से इट विल देन गो टुवर्ड्स योर ब्रेन एरिया. ठीक है. आपके ब्रेन को ये सप्लाई करेगी. वहाँ पर इट विल फर्दर गिव ऑफ ब्रांचेस. ठीक है. These are all the branches of the internal carotid artery, ophthalmic, posterior communicating, anterior cerebral and the middle cerebral artery. All of these are the arteries जो कि आपकी ब्रेन को सप्लाई कर रही है. ब्रेन को भी तो आर्टिकल सप्लाई चाहिए ना. ठीक है. तो ब्रेन के सारे रीजन्स को सप्लाई करेगी. ब्रेन की क्या ब्लड सप्लाई होती है, पूरा एक सर्कल ऑफ विलेज बनता है. वो आप न्यूरो एनाटॉमी में डिटेल में यू विल लर्न इट इन द नेक्स्ट सेमेस्टर. तो मेजर चंक ये है कि इंटरनल कैरोटिड आपकी मेनली आपके ब्रेन को सप्लाई करिए और जो एक्सटर्नल कैरोटिड है वो आपके बाकी आउटर नेक एरिया को और आपके फेस एरिया को सप्लाई करिए. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. I hope there are no questions.